Father, we've come before you this day with hearts full of gratitude, with hearts full of praise, Lord. We are here to give you our best. We are here to give you our all, Lord Jesus. Holy Spirit, we invite you in this place. We invite you to come and make your presence known, Lord. Make your presence manifest amongst us, Lord Jesus. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you. We love you. We love you. We love you. We thank you, Father. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords. You are worthy. You are worthy, King of kings, Lord of lords. I
For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. From you, for from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Father, may we never forget that you are our beginning and our end. It is from you and to you that everything starts and ends with you, Lord. So whatever we do, Lord, let it be for you. Let it be for the glory of your name. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. We love you, Jesus. We love you, Lord. You deserve all glory. You deserve all praise. You deserve all adoration, Lord. You deserve all our love, Father. You deserve all our love, Lord. There is no other love, Lord. No other love as pure as yours. No other love as real as yours, Lord. Father, this love came down from heaven and saved me, rescued me from my sin, rescued me from every trap of the enemy, and made a way for me to be with you forever, Lord. This love alone is worthy of all praise. We thank you, Father. For I spoke a word, you singing over me. You've been so, so good to me.
over you this morning. This love that paid it all. This love that gave it all. This is also the love that demands it all, that asks for all. Father, may it be our goal, our destiny, our journey for the rest of our life, that we would give all of us to you, all of our heart, all of our mind, all of our being to you, Lord. Just like how you gave us your all, Lord. You made a way. You showed us there is a way. You showed us it is possible to give your all. I couldn't earn it. I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Just take a few minutes and talk to your Father, talk to your Jesus. Say, Lord, I want to give you my all. Not just as a one-time thing, but every single day of my life. Every morning when I wake up, every night before I sleep, I will remind myself that I will give my all to Jesus. At this time, let's take our offering. Let's come before Him with our offering. Let's bring our seed that we want to sow before the Lord. Your giving is an act of worship. So this morning, I just want to encourage you to give what He is worthy of. Give what your God is worthy of. Let it be an expression of your love this morning. Father, for every heart, for every hand that is sowing this morning, Lord, we pray that you would bless them. You would bless their families, Lord. Let them never know lack. Let there never be any lack in their homes, Lord. Because they're giving to a God who is no man's debtor. So Lord, as they give you, as they pour out their love over you, you would return back to them in blessing, Lord. You would return back to them 1,000-fold blessing. Not just materialistic blessing, Lord, but Father, the bountiful presence of heaven would manifest in their homes, Lord. Even in this season, as we are fasting, as we are praying, as this month has been declared a month of sowing, Father, I pray that your people, your children, would be able to sow more than just their finances, Lord. They'd be able to sow in their efforts. They'd be able to sow in prayer. They'd be able to sow in tears, Lord Jesus. And we will see the fruit of everything that they have sown in your kingdom in the days to come, Lord Jesus. Father, we believe for a plentiful harvest, Lord. We believe for a plentiful harvest, Lord Jesus. We thank you for that plentiful harvest, God. We thank you, Lord.
We worship you, Jesus. Can we sing this chorus one more time? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. Say that once again. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Greetings and welcome to this morning's service. Welcome one more time into the presence of the Lord. एक और बार प्रभु की उपस्थिति में और उसके वचन के अध्ययन के लिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं. Welcome you all, and I am so happy to see each and every one of you joining together with us this Sunday morning. I want to appreciate each and every one of you that without fail, in a very committed manner, have been connecting with us and connecting with the grace that we flow in through these videos. इन वीडियोस के माध्यम से जो लोग नियमित रूप से और बलिदानी रूप से इन वीडियोस के प्रति आप समर्पित हैं, जुड़े रह रहे हैं, आप सभी को हम सराहते हैं. वी अप्रिशिएट योर कमिटमेंट. आपका जो समर्पण है, आपका जो विश्वास योग्यता है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपको सराहते हैं. इस देश के जिस किसी हिस्से से, जिस किसी संसार के कोने से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं. आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने जा रहे हैं. साथ ही आज की सुबह ये अक्टूबर महीने का पहला इतवार है. हमने एक नए मंथ में, नई महीने में कदम रखा है और हम विश्वास करते हैं कि इस महीने हम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो मसीह की देह में, मसीह के प्रेम करने वाले लोग हैं, वो कुछ नई विजेताओं को हासिल करने जा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है. तो इन विजेताओं की ओर चलते हुए हम आपका स्वागत करते हैं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ चलें. Join us in this journey, that we could journey together into the victories that God has placed before us. So one more time, welcome each and every one of you. This morning, before we get into the word, आज की सुबह परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं. We come to you, Lord, and we pray that you would speak to us this morning. आज की सुबह आप हमसे बातें करें, Lord. प्रभु, हमारी प्रार्थना है, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को हम आपके अधीन करते हैं. ऐसा होने पाए कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें धोकर शुद्ध करे, हमें तैयार करे कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सके, आपके वचन के अनुसार जी सके और आपका वचन हमारे जीवनों में नजर आने पाए,
प्रकट हो और आपके वचन के फल हमारे जीवन में नजर आने पाए, प्रकट हो। प्रभु इस समय इस वीडियो से जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐसा हो प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को अपने नियंत्रण में ले ले, जैसे हम अपना समर्पण आपकी ओर एक और बार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमने ये प्रार्थना की है। आमेन, आमेन, आमेन। This morning I want to talk to you through a very familiar passage of scriptures. आज की सुबह मैं वचन के बहुत ही एक चर्चित अध्याय से आपसे बातें करना चाहता हूँ, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारी मदद करे कि जितना उसने मुझे दिया है हम उतने पर पूरी रीति से ध्यान दे सके। तो प्रार्थना में बने रहे, बी इन द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेयर, बी इन द पोजीशन ऑफ रिसीविंग। हम रिसीव करने के पोजीशन में आ जाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप तैयारी के साथ बैठे हैं, अपने बाइबल्स, अपने किताबें, अपने बुक्स, पेन्स सब के साथ में। केवल आत्मिक तैयारी नहीं, शारीरिक रीति से भी आपने तैयारी की है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। Amen. Just as much as we prepare our spirits to receive from the Word of God, we need to prepare our bodies. We need to be ready in the spirit, soul and body. हमें हमारे प्राण में, आत्मा में और शरीर तीनों में तैयार होना है उसके वचन से प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, if you have your Bibles with you, turn with me to the book of Ezekiel. हम पुराने करार में एहेजकेल की पुस्तक के पास जाएंगे और उसका 37वां अध्याय हम उठाएंगे। यह एहेजकेल की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय, Ezekiel chapter 37. We will read verse 1 onwards. पहले वचन से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों ने ये अध्याय पहले पढ़ा होगा। Lot of you might have read this passage before, but let us just empty ourselves before the Lord so we can receive new things from Jesus this morning. Hallelujah. I hope you are excited, because I am excited. If you're excited, tell your neighbor, tell your family member who's sitting with you, I am excited. Are you excited? Hallelujah. Amen, amen, amen. Verse 1 onwards, it says, "The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. And he caused me to pass by them around about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest." If we read ESV, it says, he said to me, "Son of man, can these bones live?" And I answered, O Lord God, you know. Hallelujah. The Bible says, now Ezekiel is writing down his experience. ये एजेकिएल जो है, उसका जो अनुभव है परमेश्वर के साथ, उसको दर्ज कर रहा है। ये एजेकिएल की पुस्तक उन सारे जो है दर्शनों से, उन सारी भविष्यवाणियों से भरी हुई है जो यह एजेकिएल को परमेश्वर के द्वारा मिली, और जो अनुभव और जो मुलाकातें उसकी परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हुई, उसका अनुभव और उसका गवाही वो लिख रहा है। और 37वां अध्याय जो है अचानक से शुरू होता है, जहां वो कहता है कि मैं
प्रभु के आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई हुई। द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था और उसने, मैं आत्मा में मुझको जो है लिया और मुझे इस तराई के अंदर बिठा दिया। मैं हिंदी में ज़रा पढ़ूँ आपके लिए कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यानी यहोवा का हाथ मेरे ऊपर था और वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। Amen. The hand of the Lord was upon me and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley. Hallelujah. Before he could be set in the midst of the valley, इससे पहले कि यहेजकेल जो है उस हड्डियों से भरी हुई तराई में रखा जाता, वहां पर उसे खड़ा किया जाता, कुछ चीजें होनी जरूरी थी। उनमें से कुछ ये थी, नंबर 1 कि वो कहता है कि प्रभु का हाथ मेरे जीवन पर था। द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी and he brought me out in the spirit of the Lord. The hand of the Lord was upon me. Number 1, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था। दूसरा, मुझे पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने बाहर निकाला और इन हड्डियों की तराई के बीच मुझे खड़ा किया। The hand of the Lord was upon me. प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था ना। He is saying the hand of the Lord. In Hindi it says the power of the Lord was upon me. परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर हुआ। Now, अगर परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन के ऊपर उतरा, the hand of the Lord represents the power of the Lord. परमेश्वर का हाथ उसके सामर्थ को दर्शाता है, उसके बल को दर्शाता है। Hallelujah. If we look at the parallels from this passage a little bit for the first verse, पहले जो अध्याय या पहला जो वचन है उसके समान हम शब्दों को, वचनों को देखें तो परमेश्वर का सामर्थ एक और जगह कुछ लोगों के ऊपर उतर कर आया था। The hand of the Lord was upon me. That means the power, the strength of the Lord was upon me. परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। तो अगर यहेजकेल कह रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर उतरा, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर उतरा, तो हमारे लिए जो हम नए करार में जी रहे हैं उसका समानार्थ यह हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उस समय जब उसे यह अनुभव हो रहा था उसके ऊपर उतर कर आया। The Spirit of the Lord came upon him, and the Spirit of the Lord came upon him, and there was power, there was strength. Hallelujah. That's why Ezekiel said the hand of the Lord was upon him. That's the power of the Lord, the strength of the Lord. Hallelujah. I hope you're understanding. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। Amen. क्योंकि नया करार कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जब किसी पर उतरता है वो सामर्थ को पाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ, उसका बल यहेजकेल के ऊपर था और वो कहता है परमेश्वर का वो बल मुझे अपने ऊपर महसूस हुआ, was upon me।
वो मेरे ऊपर उतर कर आया, यानी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया था। हालेलुया। ध्यान से सुने प्यारो, पुराने करार में जब परमेश्वर को, उसके नबियों को, उसके लोगों को कुछ विशेष अनुभव देने होते थे, कुछ विशेष कार्य उनके जीवन के द्वारा करवाने होते थे, तो परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर एक थोड़े समय के लिए उतर कर आता, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता, परमेश्वर का वो सामर्थ उनके जीवन पर से उठा लिया जाता था। लेकिन हम जो नए करार के लोग हैं, यीशु मसीह के बलिदान के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण, आज परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर केवल उतर कर आता ही नहीं, मगर हमारे ऊपर ठहर जाता है, और उसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। हालेलुया। Today the Holy Spirit just doesn't come upon us for a little or a limited amount of time. The Holy Spirit comes upon us and then stays there. So the power of God is more consistent. The hand of the Lord is more consistent over people in this time and age, over people after the death, burial, and resurrection, than it was in the Old Testament. What am I trying to tell you? That if Ezekiel had certain experiences, because the hand of the Lord was upon him, but that too was for a little amount of time, the same hand and the same power of God is on us and is in us as a permanent dwelling. परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे ऊपर, परमेश्वर की वही उपस्थिति हमारे अंदर है, पर अब परमानेंट है। हालेलुया। परमानेंट है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे कि जब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का हाथ उसके जीवन के ऊपर आया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको, it says, the Lord carried me. He brought me out in the spirit of the Lord. He brought me out. The hand of the Lord carried me out in the spirit of the Lord. तो परमेश्वर का आत्मा येज़ेकेल के ऊपर था, और दूसरा वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे उसकी आत्मा में बाहर निकाला। तो हम देखते हैं आत्मा के दो कार्य हो रहे हैं। There are two things that are happening by the Spirit of God. दो चीजें हो रही हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। नंबर एक, परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल के ऊपर उतर के आता है, जो वो वर्णन करता है कि परमेश्वर का सामर्थ के अनुसार। और हमने देखा कि नए करार में वो कहते हैं, बाइबल कहती है हमसे कि जब परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है किसी के ऊपर, तो वो बल पाता है, सामर्थ पाता है। और वही सामर्थ, वही बल, वही ताकत यहेजकेल के जीवन के ऊपर था। दूसरा, उसके ऊपर वो सामर्थ था, उसके ऊपर वो परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया था। दूसरा, परमेश्वर के ही आत्मा में उसके अंदर, he says, I was brought out in the spirit of the Lord. So the Holy Spirit is doing two things. पवित्र आत्मा दो चीजें कर रहा है। एक, उसने यहेजकेल को पूरी तरह कवर किया है ऊपर से। दूसरा, पवित्र आत्मा में उसे वो बाहर लेकर आ रहा है। लेकिन उसको बाहर लाने से पहले समझना यह जरूरी है कि लिखा है इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में बाहर लाया गया। यानी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसको बाहर ला रहे हैं।
लेकिन पवित्र आत्मा में वो खुद था, वो उसका पोजीशन था। Are you with me? The Holy Spirit, the hand of the Lord, the power of the Lord was upon Ezekiel. The Lord brought him out. But when the Lord brought him out, what was Ezekiel's position? जब एजिकियल को बाहर लाया गया, उसका पोजीशन क्या था? कि वो पवित्र आत्मा में था। हालेलुया। यानी कि वो पवित्र आत्मा में बना हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था, परमेश्वर के सानिध्य में बना हुआ था। उस कारण परमेश्वर का उपस्थिति उसके ऊपर आया और उस उपस्थिति ने उसे बाहर निकाला, ताकि एक अनुभव, एक एनकाउंटर उसे मिले जो एक बहुत बड़ी विजेता को दर्शाता है। हालेलुया। चेले यीशु मसीह के वचन का आज्ञा पालन करते हुए 40 दिन तक यरूशलेम में बने रहे, और जब वो वहां थे, वो प्रभु की मर्जी में थे। हालेलुया। वो लोग कहां थे? वो वहां इकट्ठा थे प्रभु की मर्जी में। They were the disciples were in the desire, in the will of God. And when they were in the will of God, the Spirit of God came upon them. Hallelujah. What does it mean to be in the Spirit of God? पवित्र आत्मा में बनना मतलब क्या है? उसकी इच्छा में बने रहना, उसके वचनों में बने रहना, उसकी अधीनता में बने रहना। Hallelujah. I hope you are understanding this. Amen. Amen. तो जब एजेकियल पवित्र आत्मा में था, पवित्र आत्मा में, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा में निकाला गया, बाहर लाया गया, the power of the Lord and the presence of the Lord together. परमेश्वर का सामर्थ, उसका बल उसके जीवन पर तब आया जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था। हालेलुया। हम लोग कई बार कहते हैं कि हम कब ऐसी विजेताओं को पाएंगे जैसे एजेकियल को यहां पर उस विजेता का अनुभव हुआ। हालेलुया। उसके लिए हमारा पवित्र आत्मा में, उसकी उपस्थिति में बने रहना जरूरी है। Amen. You know, in the book of Revelations, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना जो प्रेरित है प्रभु का, वो कहता है कि प्रभु के दिन मैं पवित्र आत्मा में बना हुआ था और तब मैंने एक आवाज को सुना। Hallelujah. I think that is Revelations chapter 4, वो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का बात है। कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में था, और जब मैं आत्मा में था तब मुझे ये अनुभव हुए, और वो अपने अनुभवों को लिखता है। So the encounter of the Lord just does not happen because I am in church. The encounter of the Lord just doesn't happen because I am a Christian. परमेश्वर के साथ एक इतना भारी मुलाकात केवल इसलिए नहीं होता कि मैं मसीही हूं या मैं दिन में 5 मिनट प्रार्थना करता हूं। नहीं, वो इसलिए होता है कि मैं निरंतर पवित्र आत्मा में पाया जाता हूं, और जब मैं पवित्र आत्मा में पाया जाता हूं तब परमेश्वर का सामर्थ, उसका बल मेरे ऊपर आता है, और जब वो मुझे ऊपर आता है वो मुझे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां का अनुभव शायद उतना कंफर्टेबल ना हो। हम लोग हमेशा सोचते हैं ना
कि मैं पवित्र आत्मा में बना हुआ हूँ, मैं प्रार्थना में बना हुआ हूँ, उपवास कर रहा हूँ, है ना, मैं आराधना में हूँ, तो मेरे अनुभव इतने बुरे कैसे? कभी होता है आपके साथ? हम लोग भी अब एक कलीसिया होने के नाते और रिवाइव नेशंस की सारी मंडली जो है, हमने ये पूरा महीना प्रार्थना और उपवास के लिए डेडिकेट किया है। तो मैं जानता हूं कि कई लोग ऐसे ही सूखे परिस्थिति से होकर गुजरेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दुश्मन ने हमला किया है। मुझे ध्यान से सुने, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब वो पवित्र आत्मा में था, प्रभु ने उसको उठाकर एकदम आराम की जगह में, कंफर्टेबल जगह में नहीं लेकर गया। When he was in the Spirit, the power of God was upon him, and the Holy Spirit, the Lord brought him out in the Spirit and did not take him into a garden. He did not take him next to a seashore. He did not take him into a very tranquil, blessed, pleasant atmosphere. No, he took him, and the Bible says, the Lord set him. Who set him? The Lord set him in the midst of a valley. जब परमेश्वर का हाथ उसके जीवन के ऊपर था और प्रभु परमेश्वर ने अपनी आत्मा में उसको बाहर लिया, उसको निकालकर एकदम आराम की जगह में, किसी समंदर के किनारे, किसी गार्डन में बहुत सुंदर आराम संगीत बज रहा है, ऐसी जगह में नहीं बिठाया, उसे एक तराई में बिठाया। और हमें तराइयां, वादियां पसंद नहीं है। We don't like valleys. We don't like valleys. In fact, more often than not, when we are praying and we go through such a circumstance, we start complaining. Lord, I am praying, I am fasting, I am singing, I am giving. प्रभु, मैं गा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, तो मैं इस परेशानी से क्यों, मैं इस सूखी हड्डी की तराई से क्यों जा रहा हूँ? Amen. बाइबल कहती है, लूका का 4 अध्याय, Luke chapter 4 verse 1 onwards, I believe. It says, then Jesus, being filled with the power of the Holy Spirit, came out of Jordan and was led by the Holy Spirit into the wilderness. 4 अध्याय लूका रचित सुसमाचार पहले वचन से बाइबल कहती है कि तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यरदन से निकले और पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई कहाँ की? रेगिस्तान में, और वहां पर 40 दिन तक उसको परखा गया। फिर से आप देखो, what is happening? One more time. He was full of the Holy Spirit. The Holy Spirit had just come upon him in the bodily form and rested upon him. He was now filled with the Holy Spirit. Both the things are there. The Spirit was upon him, in him, but now the same Holy Spirit is leading him into the wilderness. उनको रेगिस्तान में लेकर गए। Are you seeing the pattern? What I want to tell you is, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन के ऊपर है, when you are filled in the Holy Spirit, your position is in the Holy Spirit. You have the power of God, the hand of God, the strength of God over your life. And it is the Lord that is placing you in the wilderness. It is the Lord that is placing you in the valley. It was not the devil that took Ezekiel into the valley. शैतान ने उसको तराई के अंदर नहीं लेकर गया। शैतान यीशु मसीह को रेगिस्तान में नहीं लेकर गया।
परमेश्वर की आत्मा उसको वहां पर लेकर गई। यहां पर तो यिजकेल कह रहा है कि परमेश्वर ने स्वयं मुझे वहां लेकर गए हैं। जब आप आत्मा में होते हैं, जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, भरे हुए होते हैं, उसका सामर्थ्य आपके जीवन पर होता है। वो आपको कहीं लेकर जाता है। He takes you on a journey. He pulls you out from where you are and he takes you into something. वो आपको कहीं से बाहर निकाल के कहीं ले जा रहा है। मेरा सवाल है आपसे, was that Ezekiel's valley? Ezekiel was in the valley, but was it Ezekiel's valley? Jesus was in the wilderness, but was it Jesus's wilderness? Are you listening to me, church? यहेजकेल तराई में था, लेकिन क्या वो तराई उसकी थी? क्योंकि अध्याय कहता है कि तराई सूखी हुई हड्डियों की थी। यानी कि वो तराई में था, पर वो तराई उसकी नहीं थी। Come on now. Are you understanding what I'm saying? You might be in the desert. You might be in the valley. But I'm here to tell somebody it is not your desert, it is not your wilderness, it is not your valley. The valley is of the dead bones. The Lord has taken you into somebody else's place of death. The Lord took Ezekiel into somebody else's place of death. हमारा विचार बदलने का जरूरत है प्यारो। हमें लगता है जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपवास में हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए सब में चल रहे हैं और हमें तराई जैसा अनुभव होता है, हमें रेगिस्तान जैसा अनुभव होता है और हम कहते हैं प्रभु मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया, मुझे ये अनुभव क्यों है। आप उस अनुभव से होकर गुजर रहे हो, मगर वो अनुभव आपका नहीं है, वो रेगिस्तान आपका नहीं है, वो तराई आपकी नहीं है। आपको प्रभु ने वहां पर खड़ा किया है। सवाल ये करना चाहिए कि प्रभु क्यों? हालेलुया, हालेलुया। खोरो मोंदेरियाला मोशांता रिब्रोलो बोदिया। सी, आप कहेंगे कि यीशु मसीह का तो परखना हुआ था उस रेगिस्तान में। यीशु मसीह का क्या हुआ था? परखना हुआ था उस रेगिस्तान में। लेकिन उस रेगिस्तान में भी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उस रेगिस्तान में भी पवित्र आत्मा ही उसको लेकर गया था, अपनी मर्जी से या शैतान के द्वारा नहीं। शैतान उधर आया, द डेविल केम देयर। I want to tell somebody, मैं किसी से ये कहना चाहता हूं, आप जिस तराई में खड़े हैं, आप जिस रेगिस्तान में खड़े हैं, सवाल आपको ये करना है, क्या प्रभु के हाथ ने, प्रभु के सामर्थ्य ने, प्रभु की आत्मा की परिपूर्णता ने मुझे यहां लाकर खड़ा किया है? क्योंकि ये महीना मैं कईयों से कहना चाहता हूं कि रेगिस्तान और इस डरावनी तराई का अनुभव होगा, लेकिन ये तराई आपकी नहीं है। आपको प्रभु ने वहां रखा है, आपको प्रभु वहां लाया है। हालेलुया। तो हिम्मत बांधो, निराशा से बाहर निकलो। Let every spirit of heaviness be lifted up right now as you hear this word, because you are in somebody else's valley. It's not by your choice, it's by God's divine program. आपका अपना चुनाव नहीं था वहां ना, परमेश्वर की अलौकिक योजना में उसने आप जहां थे वहां से आपको उठाकर इस तराई में लाया है।
तो आज निराशा को अपने आसपास जगह न देना, क्योंकि आप जहां हो वहां प्रभु का हाथ आपको लेकर आया है, और जहां प्रभु का हाथ आपको लेकर आया है वहां आपका नाश नहीं होगा। जहां परमेश्वर की आत्मा में भरकर आप लाए गए हो वहां पर आप पर कोई आंच नहीं आएगी। Where the Spirit of the Lord has brought you and the hand of the Lord has set you, there the enemy won't be able to touch you. There the enemy will not be able to destroy you or harm you in any way, because remember, that valley is not yours. It is the valley of the dry bones. वो तराई आपकी नहीं है, सूखी हुई हड्डियों की तराई है। Hallelujah. Hallelujah. I am excited. I am excited as I'm speaking to you this morning. I am excited as I'm speaking to you this morning. Robo diyatata kalaba. Come on, somebody thank the Lord. कोई परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु धन्यवाद कि आज मैं इस जगह में हूँ, इस तराई जैसे परिस्थिति में हूँ, इस रेगिस्तान जैसी परिस्थिति में हूँ, मगर ये रेगिस्तान मेरा नहीं है, ये मुझ पर हावी नहीं होगा। मैं यहाँ पर लाया गया हूँ परमेश्वर के हाथ के द्वारा, परमेश्वर के बल के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। खोमोदे रबा सिए ठेते खेरबे। Let me slow down. Are we learning something, church? Are we learning something? The Bible says, He set me down in the midst of the valley which was full of bones. He set me down. Who set me down? The Lord set me down. प्रभु ने मुझे एक ऐसी तराई के बीच लाकर खड़ा किया जो हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियां यानी कि लोग जो कभी जिंदा हुआ करते थे। Bones, that means these were people who were once alive. कभी ये जिंदा हुआ करते थे। अब उनके बीच लाके प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, ऐसा एजिकियल कहता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने ही, verse 2 it says, and he caused me, he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. Hallelujah. वो कहता है कि प्रभु ने ऐसा किया कि मुझे उन हड्डियों के बीच से चलवाया और मुझे देखने को लगाया। मैं देखा, क्या देखा मैंने? कि बहुत सारी हड्डियां थी और बहुत सूखी थी। इस वचन में देखिए 3 चीजें हो रही हैं। प्रभु उसे हड्डियों के बीच से चलवा रहे हैं, एक ऐसी तराई जो हड्डियों से भरी हुई है। A valley that is full of bones. The Lord, he's saying, the Lord set me up there, and then he's causing me to move in that place. He, before causing me to move in that place, he set me there. इससे पहले कि वो मुझे वहां चलाता फिराता, उसने मुझे वहां खड़ा किया। He set me there. He set me there. If the Lord has brought you to a place, He will set you there. And then He will cause you to move around and see. वो लाकर आपको पहले वहां खड़ा करता है। रेगिस्तान जैसी हालत है, तराइयों जैसी हालत है, मुश्किल है, लॉकडाउन परिस्थिति है, बीमारी है, कठिनाई है, लेकिन याद रखो आप तराई में हो मगर वो परिस्थिति आपकी
नहीं है, वो रेगिस्तान आपका नहीं है, वो तराई आपकी नहीं है, आप वहां पर हैं। प्रभु ने आपको वहां लाया है। नाउ यू आर मूविंग अराउंड। अब आप चल रहे हो वहां पे, प्रभु आपको लेकर चल रहा है। क्यों लेकर चल रहा है? ताकि आप देखें। He is giving you more information. The Lord did not take him around to put fear. प्रभु उसको उस तराई में से लेकर इसके लिए नहीं जा रहा था कि देख इतनी सारी हड्डियां हैं, डराने के लिए। नहीं, वो उसको जानकारी दे रहे थे। 2 टाइप की जानकारी। नंबर 1 कि बहुत सारी हड्डियां थी। नंबर 2 वो बहुत सूखी हुई थी। इंफॉर्मेशन, बहुत सारी हड्डियां थी और बहुत सूखी हुई थी। बहुत सारी हड्डियां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी मुश्किलें थी और बहुत सूखी थी, यानी कि बहुत जटिल परिस्थिति थी, बहुत कठिन परिस्थिति थी। और जब परमेश्वर ने उसको ये सारी जानकारी दे दी, जब उसने इन सारी चीजों को देखा, प्रभु ने उससे सवाल किया और पूछा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित होंगी? Will these dry bones live? Will these dry bones live? Will these dry bones live? Will these, ये जो मरी हुई परिस्थिति है, ये जो मरे हुए लोग हैं जिनकी अब सिर्फ हड्डियां बची हैं, और हड्डियां जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी नहीं है, अलग अलग हड्डियां हैं, एक साथ भी नहीं है। परिस्थिति इतनी बेकार है, परिस्थिति इतनी बुरी है कि रेगिस्तान जैसा माहौल है। यहां पर विजयी कैसे होंगे? दुश्मन परख रहा है। यहां परमेश्वर उसको पूछ रहा है कि क्या होगा? क्या ये जिएंगे? क्या ये हड्डियां जिएंगी? प्रभु ने एक जानकारी रिलीज किया और वो जानकारी को देने के बाद, वो अनुभव देने के बाद, अब प्रभु पूछ रहे हैं कि बता, तुझे क्या लगता है? देखिए, परमेश्वर जब सवाल करते हैं ना हमसे, स्पेशली ऐसा कुछ, तो क्या जवाब देंगे? व्हाट? अगर प्रभु आपसे और मुझसे पूछता तो हम क्या जवाब देते? हम बोलते प्रभु हमको क्या मालूम। लेकिन ये एजिकेल क्या बोलता है पता है? प्रभु आपको ही मालूम है। वो ये नहीं कहता है कि प्रभु मुझको क्या मालूम, मैंने थोड़ी चुना था यहाँ आना। He doesn't say, Lord, what do I know? I didn't choose to come here. I didn't come here because there was a prospect of these dry bones coming back to life. You brought me here, so you know better. That means the one that brought you into the situation knows better about the situation. वो जिसने आपको उस परिस्थिति तक अगुवाई की है, वो स्वयं जानता है, बेहतर जानता है। So rather than complaining, Oh Lord, why are we here? इसके बजाय कि हम शिकायत करें कि प्रभु हम यहाँ क्यों हैं, हमें यहाँ क्यों लेकर आया, परिस्थिति, हड्डियां, मुझे नहीं अच्छा लगता है प्रभु। प्रभु आपको बेहतर पता है। हालेलुया। प्रभु को पता है, प्रभु को पता है, वही आपको लेकर आया है। अगर आप उसके हाथ के नीचे बने थे, अगर आप उसके पवित्र आत्मा में बने हुए थे, उसकी इच्छा में बने हुए थे, उसका सामर्थ्य आपके जीवन पर आया, उसने आपको बाहर निकाला है। आमीन। बाहर निकाला है, यानी जहां आप थे कंफर्टेबल, वहां से बाहर निकाला है और एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाया है। केवल इसके लिए नहीं कि उसको आपका आराम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब तक हम आराम वाली जगह में हैं, हम ऊंचाई वाली जगह में नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम अनकंफर्टेबल जगह में हैं, तब प्रभु हमको और ऊंचाई की जगह में लेकर जाएगा।
Hallelujah. Hallelujah. Let's not complain about the valley we go through, because the Lord who brought us to that place knows better if the bones will live, if there will be rain, if there will be, who knows? The Lord knows better. The Lord, our all-knowing God, the omniscient Lord, the all-knowing, omnipotent God, He knows all. He knows better. Amen. I don't know how much time we will be able to spend on this word today, but I want to tell you something. When Ezekiel answered the Lord, जब यहेजकेल ने परमेश्वर को उत्तर दिया, तब प्रभु कहता है, क्योंकि तूने मुझसे कहा है कि मुझे बेहतर पता है। चौथा वचन कहता है, अगेन ही सेड अनटू मी, अगेन, दैट मीन्स ही स्पोक टू हिम द सेकेंड टाइम। चौथा वचन क्या कहता है कि तब उसने मुझसे कहा। हिंदी में लिखा है तब उसने मुझसे कहा, बट इंग्लिश इट सेज ही स्पोक टू मी अगेन। What caused the Lord to speak to Ezekiel again? Ezekiel ने ऐसा क्या किया कि प्रभु ने दोबारा अगेन उससे बातें की? उसका जवाब, प्रभु आपको पता है। अगर वो ये कहता है कि नहीं प्रभु, हड्डियां बहुत सूखी हैं, क्योंकि आपने ही दिखाया ना मुझको, इतनी सूखी हड्डियों का क्या होगा? आपने ही दिखाया प्रभु, और कैसे जिएंगी, किधर का क्या है, अपने को क्या मालूम? We don't know which bone connects to which bone. They all look alike. Plus they are so dry. I don't think so. अगर यहेजकेल ये कहता कि प्रभु मुझे लगता नहीं, तो जो आगे हुआ वो नहीं होता। लेकिन यहेजकेल ने ये कहा कि प्रभु आपको बेहतर पता है, You know better. He says yes. Now that you have in this situation also told me that I know, let me tell you what I am about to do. Hallelujah. कितनी ही बार हम परमेश्वर की आवाज को दोबारा नहीं सुन पाते, क्योंकि जब पहली बार हमने परमेश्वर की आवाज को सुना, हमने सही जवाब नहीं दिए। यहेजकेल ने सही जवाब दिया कि प्रभु आपको बेहतर पता है। और अब परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि तूने कहा है कि मैं जानता हूं। कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो, प्रभु आपको पता नहीं क्या? Don't you know, Lord? Ezekiel is saying, Lord, you know. See, there is a difference. हम किस रीति से जवाब देते हैं हमारी परिस्थिति में, हम किस रीति से जवाब देते हैं हमारी सूखी हड्डियों के बीच में, उस तराई के बीच में, उस पर निर्भर करता है कि हम दूसरी बार उसकी आवाज सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। प्रभु आपको पता नहीं है क्या? प्रभु आपने देखा नहीं है क्या? उसके बजाय हमें यह कहना कि प्रभु आपको पता है ना, आपको पता है। जब तक आपको पता है मुझे क्या परवाह है। हालेलुया। कम ऑन नाउ चर्च। और जब उसने कहा कि प्रभु आपको पता है, when he said Lord you know, the Lord said now let me tell you what I know. जब हम कहते हैं उसको कि प्रभु आपको पता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है, तो प्रभु कहता है ठीक है, तूने मुझे जो पता है, मेरे ज्ञान पर तूने विश्वास किया है, मेरा जो नॉलेज का भंडार है तूने उस पर विश्वास किया है, तो अब मैं तुझको बताता हूं कि मुझे क्या पता है।
Hallelujah. I am giving you keys to listening to God the second time. मैं आपको चाबी दे रहा हूं कि कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हम लोग ये नहीं सीख पाते। पहला अनुभव हुआ, हम वही लेके बैठ जाते। कितने लोग कहते हैं, अरे पता है तब भी प्रभु मेरे को लेकर गया वहां हड्डियों के तराई में, मुझको पूछा भी कि होएगा क्या। मैंने बोला नहीं होएगा प्रभु। प्रभु मान गया मेरा बात, वापस लेकर आया मुझको। लेकिन अगर तू प्रभु पर विश्वास करता उस समय और कहता प्रभु आपको ही पता है, तो तुझे आगे का अनुभव और मिलता। कई बार हम एक ऊंचा अनुभव पाने से चूक जाते हैं क्योंकि हम एक निचले लेवल के अनुभव में प्रसन्न हो जाते हैं, या उसके आगे हम कितना बढ़ सकते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे उत्तर, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर, हमारा जवाब, आवर आंसर्स, आवर ट्रस्ट एंड फेथ इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, इन द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड will decide if we are going ahead into a greater encounter or we are going back never to have one ever again. May you have encounters this day onwards in Jesus name. आज से आपको परमेश्वर के अनुभव मिले और आप सही उत्तर दें। May you give the right answers to the questions of the Lord, and may those open doors for you to have greater encounters in this month, इस महीने में, in this month I pray and I declare, may you have greater encounters in the name of Jesus. Somebody shout an amen. Kelo mo shabadi yetete keraba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Somebody receive that word. Somebody receive. Clap your hands and thank Him. Clap, because the Lord is releasing some encounters. परमेश्वर कुछ मुलाकातों को, कुछ अनुभवों को, कुछ लोगों के ऊपर रिलीज कर रहे हैं इस समय. If you are ready, just clap your hands wherever you are and receive it in the name of Jesus. Then the Lord says, now let me tell you what. He says, and again He said unto me, now prophesy on these bones. Say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Oh, Limodia Tata Karaba. Let me read it in ESV as well. He said to me, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. He's saying, prophesy to these dry bones. See, the Lord is also very intentional about the words He uses. प्रभु भी जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को यूं ही इस्तेमाल नहीं करते, जानकर पूरी समझ के साथ करते हैं। वो एहेजेकेल से कह रहे हैं, जब दूसरी बार उससे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, इन सूखी हड्डियों के ऊपर अब तू भविष्यवाणी कर। देखो, अगर मैं एहेजेकेल की जगह होता, if I would have been in Ezekiel's place, I would have said, Lord, I know I said you know better. But now this is too much. What am I supposed to say to the dry bones? मैं किसके ऊपर प्रोफेसी करूं? वो जिनका तो लाइफ ही नहीं है। Listen to me. The Lord is saying, prophesy. प्रभु क्या कह रहे हैं? नबूवत कर, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी, भविष्य। प्रभु, ये सूखी हड्डियां हैं, इनका अतीत हो सकता है, भविष्य नहीं हो सकता, ऐसा मनुष्य का बुद्धि कहता है।
Lord, these are dry bones. They sure had a past, but I don't see a future. But the Lord is saying, you don't see, I see it. And that's why I'm saying, you prophesy. For over the things regarding which you think there is no future, वो चीजें, वो परिस्थितियां, वो लोग, वो बिजनेस, वो विवाह, वो बच्चे, जिनको देखकर आपको लगता है इनका कोई भविष्य नहीं है, ये एकदम ड्राई है, सूखा हुआ है, उनको देख के प्रभु कह रहा है, नाउ अभी तू प्रोफेसी कर. देखो, परमेश्वर दोबारा से उसको परख रहा है कि क्या बोलेगा. What will he say? Lord, how am I supposed to prophesy to dry bones? They don't have a future. They are dead. They are dead. They are gone. मर गए, खत्म हो गए, इनका कोई भविष्य नहीं है. प्रभु कहता है, नहीं, तू भविष्यवाणी कर. Am I talking to somebody this morning? The Lord is about to touch some people's tongues. परमेश्वर कुछ लोगों की जबान को छूने जा रहे हैं और कुछ ऐसे शब्दों को वो देंगे और ऐसे मरी हुई परिस्थिति पर डिक्लेयर करने को कहेंगे जिस पर करने का दिल नहीं करेगा, करने का लॉजिक समझ में नहीं आएगा, उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा. बट द बाइबल सेज, ही सेज, से टू द ड्राई बोन्स, इन सूखी हुई हड्डियों पर भविष्यवाणी कर और कह कि सूखी हुई हड्डियों, प्रभु के वचन को सुनो. What is he saying? Say to them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. He is not talking to the ears. वो कानों से नहीं कह रहे कि प्रभु का वचन सुनो. वो हड्डियों से कह रहे हैं कि प्रभु का वचन सुनो. मरी हुई हड्डियों से. अगर प्रभु कह रहा है कि तू हड्डियों से कह कि मेरे वचन को सुने, तो हमें अपना लॉजिक उसमें डालकर यह नहीं कहना है कि प्रभु हड्डियां तो सुन नहीं सकती. इसके लिए ध्यान से कहना है, ध्यान से. वो हड्डियों से कह रहे हैं, हड्डियों, प्रभु का वचन सुनो. It's like the prophet saying, the word of the Lord is like fire in my bones. प्रभु का वचन मेरे हड्डी में जैसे आग के जैसा है. कहां पर? हड्डी में. सूखी हुई हड्डियां, सूखी हुई हड्डियां. प्रभु, अगर ये हड्डी किसी बॉडी से जुड़ा होता, वो बॉडी पे थोड़ा मीट होता और उसके कान होते तो समझ में आता. हड्डियां नहीं, तू हड्डियों से ही बोलेगा. Some people are about to encounter some impossible positions. But even in the impossible positions, the Lord will ask you to do something that is as ridiculous as speaking to dry bones. But let me tell you, it is the word of the Lord. It does not need an ear for the ear of the word of the Lord to penetrate anything. The word of the Lord can penetrate anything. Any situation. ये परमेश्वर का वचन है और सिर्फ कान नहीं चाहिए उसका वचन सुनने के लिए. हम गलती यहां कर देते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं. परमेश्वर की आवाज मैं अपने शरीर के हर हिस्से से सुन सकता हूं. वो मेरे पैर को स्पर्श करके मुझसे बात कर सकता है, वो मेरे बालों को छूकर मुझसे बात कर सकता है, वो मेरे पैर के नाखून को स्पर्श करके मुझसे बात कर सकता है. The Lord can speak to any part of my body and send a message to my heart and my mind and my brain and my spirit. Even though
the dead bones, the dry bones are there. Listen to me. They had the capacity to hear. इसके बावजूद कि वो हड्डियां मरी हुई थी, उनके अंदर क्षमता थी कि वो परमेश्वर का वचन सुन सकती थी। आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस तराई में हैं, आप जिस रेगिस्तान में हैं, भले ही वहां पर चट्टान और पत्थर पड़े हों, भले ही वहां हड्डियां पड़ी हों, वो परमेश्वर की आवाज सुन सकती है। भले ही बिजनेस मरा हुआ हो, भले ही करियर मरा हुआ हो, भले ही फाइनेंसेस में इश्यू हो, मरी हुई परिस्थिति जैसा हो, जब आप प्रभु का वचन बोलेंगे, कौन बोलेगा प्रभु का वचन? Okay, I'll come back. जब आप प्रभु का वचन बोलेंगे, उनमें सुनने की क्षमता है, वो कितनी भी मरी हुई क्यों ना हो। पता है क्यों? Do you know why they can hear? Because you are not an ordinary person speaking an ordinary word. आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं जो एक साधारण वचन बोल रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का बल है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और पवित्र आत्मा में बना हुआ है, और पवित्र आत्मा ने उसको उस हड्डियों की जगह में लाया है, और वही पवित्र आत्मा कह रहा है अब तू मेरे ही वचन बोल। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, दिस कॉम्बिनेशन of a man who has the power of God over his life, who is filled in the Holy Spirit, who is brought out in the Holy Spirit and is speaking the word of God by the command of the Lord. Two dead bones. This combination can do anything. That is why, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें, तब तुम मांगो। You in me, my words in you, then you may ask. Hallelujah. Am I talking to somebody this morning? Koribadi antale radaranama shantoto kolobo. Ribre dono labadi entatanama shanta. May that be you. May that be you. May that be you. आप वो व्यक्ति बने जिसके बोलने पर सूखी हुई हड्डियां सुने। May that be you. Ribrolo mo shantata karabasente. Fifth verse, it says, thus says the Lord God unto these bones, I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will cause breath to enter where? The bones. सांस, सांस किस में डाली? हड्डियों में। सांस हड्डियों में होती है कि फेफड़ों में? The breath of the Lord should be in the nostrils, not in the bones. But the Lord is saying, no, I am going to cause breath to enter you. I will cause it. The Lord is saying, I will cause it. I will cause breath of life into the bones. वो हड्डी को कैसा आप जीवन का सांस देगा? हड्डियों को कैसा? अरे हवा कौन थी? हड्डी थी ना। How was Eve made? Out of a rib, out of a bone. So the Lord who can do that then can do that there and can do it now. वो प्रभु जो बागीचे में कर सकता था,
और जो इस तराई में किया वो आज भी कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। सूखी हड्डियों में हवा आएगी, जीवन की सांस आएगी। सूखी परिस्थिति में जीवन की सांस आएगी। एज यू स्पेंड टाइम दिस मंथ, इस महीने जैसे आप अपने आप को अलग करते हैं प्रार्थना में, उपवास में, परमेश्वर के वचन में, हर वो चीज़ जो मरी हुई है, सूखी है, जो इस लॉकडाउन की वजह से मर गई, जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से मर गई, जो आपके बुरे निर्णयों के वजह से मर गई, आपके गलत फैसलों के वजह से मर गया परिस्थिति, जो कुछ भी मरा हुआ है, जब आप प्रभु के हाथ के नीचे हैं, उसके आत्मा में बने हुए हैं, उसके पवित्र आत्मा में है और प्रभु आपको लाकर खड़ा किया है, याद रखो ये किसी और की तरह ही है, आपकी भी नहीं है। आपकी तरह ही में कोई और खड़ा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप इन चीजों में से होकर गुजर रहे हैं ताकि कोई और सूखी हड्डियां जीवन पा सके। Rubo deria labadi antoto. There is a season we are entering, church, that the church is going to become a blessing for somebody else like never before in history. Let me repeat myself. मैं कह रहा हूं आपसे कि हम एक ऐसी समय काल में कदम रख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की देह, मसीह की दुल्हन एक ऐसी रीति की आशीष बनेगी किसी और के लिए, किसी और की हड्डियों के लिए, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यीशु मसीह के नाम में। इफ यू बिलीव दैट, क्लैप योर हैंड्स एंड रिसीव दैट वर्ड इन जीसस नेम। Kelo modia tatara namasente ribreko lobodore namashantantare keneme rimente de rabadi alabadi antoto. May this be the reality of your life. ये आपके जीवन का सच होने पाए, ये आपके जीवन की हकीकत होने पाए। हम में से हर एक, हम आशीष का कारण बनेंगे हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे सहकर्मियों के लिए, इस देश के लिए। रोमोट रोबो देलेबे शांता। प्रभु ने अगर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को इस देश में रखा है तो इसलिए कि ये देश आशीषित हो। आमीन। हम एक सूखे दौर से गुजर रहे हैं। एक राष्ट्र होने के नाते हम एक बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। दुनिया एक बहुत बड़ी मंदी से गुजर रही है, एक बड़े जो है बीमारी के साए में है। कलीसिया क्यों है? ताकि हम जीवन की घोषणा करें। Come on, church. We have been brought out. We have been brought out. We have been brought out so we can speak life. हमें बाहर लाया गया है एक ऐसी जगह में जहां हम कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। हम पवित्र आत्मा में भर के जी रहे ना। I'm talking in parables now. Listen to me carefully. I was talking to another man of God. I was talking to another brother. He said, "Oh, it is not comfortable for the church these times. But it is the Lord who has brought us here. It is not somebody's political will. It is not the devil. God has brought us out by His mighty right hand. In His Spirit, made us stand here so we can speak life into some dead bones. Don't blame the devil. Don't blame the devil. दुश्मन को कोसे नहीं, दुश्मन यानी कि शैतान को कोसे नहीं। उसने मेरे जीवन में ये किया। नो 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 नो, आप इस परिस्थिति में, इन हड्डियों के बीच में प्रभु लाया है, प्रभु खड़ा किया है कलीसिया को इस जगह में, इस परिस्थिति में जहां हम कंफर्टेबल नहीं है। कौन लाया है? परमेश्वर लेकर आया है। क्यों? क्योंकि कुछ सूखी हड्डियां हैं जिनके लिए कलीसिया को आशीष बनना है। हम कंफर्टेबल थे, हमको इन हड्डियों की परवाह नहीं थी, हमको तो पता भी नहीं था कि ये हड्डियां हैं यहां पर। प्रभु हमको लेकर आया है। क्यों? ताकि हम जीवन की घोषणा करें। हम जीवन की घोषणा रोमोड रेले ना नो मो दे रे खेले बेशंट। I will cause breath. I will cause breath
to come into these bones. I will cause breath to come into these bones. I will cause breath. I will cause breath. I will cause breath. I will cause breath. The Lord is saying, I will cause breath. मैं ऐसा होने दूंगा कि जीवन की सांस इन सूखी परिस्थितियों में घोषित की जाए. You might find yourself in an uncomfortable place. आप शायद अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसे जगह में पा रहे हैं जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करते कलीसिया, लेकिन प्रभु आपको लाया है. आज के दिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रभु आपको लाया है. We will continue in this passage next week also. हम अगले हफ्ते यहां से आगे बढ़ेंगे, because I believe right now, today, आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमसे केवल ये कहना चाहता है, हम यहां शैतान के काम के कारण नहीं है, हम यहां प्रभु ने लेकर आया है. ये हमारी तराई नहीं, हम गुजर रहे हैं इस तराई से, मगर ये कलीसिया की तराई नहीं है. ये कलीसिया के लिए आने वाले बेदारी की जगह है. We are in the valley, but the valley is not ours. We are in a valley where something died. And we are in a place where we can speak revival. Why am I saying revival? Because the bones were once alive and they were now being revived. वो हड्डियां कभी जिंदा थीं, अब उनमें दोबारा से रिवाइवल, दोबारा से उसमें जान आ रही है. प्रभु लेकर आया है. ये तराई, ये रेगिस्तान आपको खत्म नहीं करेगा. ये तराई, ये रेगिस्तान आपको ऊंचाई पर लेकर जा रहा है. अक्टूबर, destinies are being released. Destinies are being released. If I can be faithful, if I can hold on to the word of God, if I can be led by the Spirit, if the Holy Spirit can lead me into a situation where I am not comfortable, but I am saying, Lord, I have surrendered myself under your mighty right hand, we are going to be instruments of revival. हम बेदारी का जरिया, बेदारी के औजार बनने जा रहे हैं. Come on, lift your voices and speak in tongues. अपनी आवाजों को ऊंचा करके हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर. May this word open the blocks that the enemy has brought. हर वो समझ में रोड़े जो दुश्मन लेकर आया है, जो डर लेकर आया, वो सारी बातें इस वचन के द्वारा हटा दी जाएं यीशु मसीह के नाम में. Church get ready, church get ready, church get ready. ARH get ready, ARH get ready. Rolomo shantata rabasa. हमें तैयार होना है कलीसिया. जहां कहीं आप देख रहे हैं, जिस किसी जगह से, जिस किसी देश से आप मुझे देख रहे हैं, whichever country you're watching me for, church, we need to be ready because we are about to be part. It's a privilege that the Lord has given to the church, that we are about to call revival on some dead bones that are very, very dry. May this word sink in your heart, your mind, and your spirit, and your bones. And may it be like fire in your bones. ये वचन आपके अंदर एक आग के समान रहे. प्रभु, मेरी प्रार्थना है. धन्यवाद कि आप हमसे बातें कर रहे हो. लॉर्ड, राइट नाउ आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा का वचन जैसे इन सूखी हड्डियों तक पहुंचा, वैसे प्रभु तेरी तो ये जीवित कलीसिया है, उनमें ये वचन और गहराई से काम करे. हम जाने कि प्रभु आपकी योजना हमारे लिए मृत्यु की नहीं, जीवन की है, हानि की नहीं, यश की है. हमें
एक भविष्य देने की है. Your plans for me are not to harm me, to prosper me. They are to give me a hope and a future. And that is why he said, man of God, son of man, prophesy, prophesy. Listen to me. He was prophesying to the dead bones. He was prophesying to things that once had a life but didn't look like they had a future. By prophesying over dead bones, the prophet of God was prophesying life over his ministry as well. Because he would become a man whose legacy would be that this man raised an army out of dead bones. May that be your legacy. Prophesy today on every dead thing. जहां कहीं आपको जो परिस्थिति मुर्दा लग रही, आज उसके ऊपर तुम घोषणा करो. ये जानकर कि प्रभु आपको वहां लेकर आया है, ये जानकर कि प्रभु का वचन उसने आपके मुंह के अंदर डाला है. इसके लिए वो कहता है, प्रभु के वचन को सुनो ए सूखी हड्डियों. The Bible says the word of the Lord is in your mouth, is in your heart, even in your mouth. प्रभु का वचन तुम्हारे करीब है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे हृदय में है. उसे घोषित करो. Prophesy. Prophesy life, revival in the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Kore lenamasi and tatar. May this word bless your life. And pray और प्रार्थना करें कि हम अगले हफ्ते जब इस वचन में आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमसे आगे और बातें करेगा. Till that time, remember, remain under the hand of the Lord. Remain in the Spirit of the Lord. And be ready, humble enough to be led by the Spirit of God. तब तक और यीशु मसीह आने तक हम उसके महान हाथ के नीचे बने रहे, उसके पवित्र आत्मा में बने रहे, और इतनी नम्रता हो हमारे अंदर कि उसकी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई हो सके. भले ही वो हमें एक आराम की जगह से एक अनकंफर्टेबल जगह में ले जाए, मगर वहीं पर तो चंगाइयाँ, छुटकारे होते हैं. May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे. We'll see you all next week.